చైర్మన్ సాబ్, మీరు బీఆర్ఎస్ పార్టీ చైర్మన్ ఉన్న అయినా మీ మీద అవిశ్వాస తీర్మానం ఎందుకు పెట్టారు బీఆర్ఎస్ పార్టీ వాళ్ళు? చూడండి, బీఆర్ఎస్ పార్టీ వాళ్ళు పెట్టినరు లేకపోతే కౌన్సిలర్లు వాళ్ళు స్వచ్ఛతంగా పెట్టినరు అనేది పక్కకు పెడితే, నేను ఒకటే అడుగుతున్నా, నేను ఏదైతే కష్టపడినా లాస్ట్ అసెంబ్లీ ఎలక్షన్లు నేను బీఆర్ఎస్ పార్టీ కోసం ఏదైతే కష్టపడినా, ఎమ్మెల్యే కోనేరు కోనప్ప గారి కోసం నేను ఏదైతే కష్టపడినా, ఆ కష్టపడిన దానికి ఎమ్మెల్యే గారు నాకు, మాజీ ఎమ్మెల్యే గారు నాకు ఇస్తున్న ఇది రిటర్న్ గిఫ్ట్. నేను ఒకటే అడుగుతున్నా, పెట్టండి ఎవరు పెట్టిన అనేది ముఖ్యం కాదు, ఎందుకు పెట్టిన అనేది ముఖ్యం కాదు. మీరు ఒకటి ఆలోచించండి. నేను ఒకటే అడుగుతున్నా, సరే నాకు 4 సంవత్సరం టైం ఇచ్చారు ఎమ్మెల్యే గారు, నాకు 4 సంవత్సరం మాట ఇచ్చే ఉండే, వాస్తవంగా కరెక్ట్, దానిలో డౌట్ లేదు. నేను ఒకటే అడుగుతున్నా, బీఆర్ఎస్ పార్టీలో నేను ఎంత కష్టపడినా కాగజనగర్ పట్ల ప్రజలందరికీ తెలుసు. నేను ఎలక్షన్ సమయంలో ప్రతి గడప గడపకి, ప్రతి ఇంటికి తిరిగి బీఆర్ఎస్ పార్టీ గులాబీ జెండా కోసం, కోనేరు కోనప్ప గారి కోసం ఓటు అడగడం జరిగింది. అది అడగడం నాది తప్పైందని ఈరోజు నాకు తెలుస్తున్నది. నేను ఒకటే అడుగుతున్నా, సరే నాకు మీరు దించాలని ఆలోచించుకున్నారు, ఇది కౌన్సిలర్లు లేకపోతే చైర్మన్ మధ్య జరిగే యుద్ధం కాదు, రాజకీయ యుద్ధం కాదు, ఇది కోనేరు కుటుంబం వర్సెస్ సద్దాం హుసేన్ రాజకీయ యుద్ధం అని మీ అందరికీ తెలియజేస్తున్నాం. ఎందుకు అంటున్నానంటే, ఈరోజు కార్యకర్తలు బీఆర్ఎస్ పార్టీ కోనేరు కోనప్ప గారు ఎంత ఉన్న కార్యకర్తలు కూడా ఆలోచించాలి. నేను ఇంత కష్టపడిన తర్వాత నన్నే 15 రోజుల్లో వెంటనే పొడిస్తే మరి మీ గతి ఏమైతుంది రాబోయే రోజులని మీ అందరికీ తెలియజేస్తున్నా, మీ అందరినీ అడుగుతున్నా. దస్తగిరి భాయ్ 3 నెలల కింద ముందు రాలేదు, 3 నెలలు అవుతున్నది ఈ పార్టీలో వచ్చి. దస్తగిరి భాయ్ కైనా మంచోళ్ళు చాలా మంది పార్టీ కష్టపడేటోళ్ళు ఉన్నారు, వాళ్ళకు అవకాశం ఇవ్వకుండా ఈరోజు దస్తగిరి భాయ్కి ఎందుకు ఇచ్చిందని నేను అడుగుతున్నా. ఎమ్మెల్యే గారు ఏదైతే మాజీ ఎమ్మెల్యే కోనేరు కోనప్ప గారు ఉన్నారు, వారు ఇప్పుడు ఆసిఫాబాద్ బీఆర్ఎస్ పార్టీ డిస్ట్రిక్ట్ ప్రెసిడెంట్ ఉన్నారా కాదా? మరి ఇంత ఉన్న తర్వాత కూడా వాళ్ళు మా కౌన్సిలర్లో లేకపోతే ఎవరో రాజకీయ కుట్ర కోసము దేనికోసము వాళ్ళు అవిశ్వాసం పెట్టినప్పుడు కనీసం మాజీ ఎమ్మెల్యే ఇప్పుడు ఉన్న డిస్ట్రిక్ట్ ప్రెసిడెంట్ గారు ఎవరికి ఫోన్ చేయకుండా ఆపకుండా ఉన్నారంటే వాళ్ళు ఇప్పుడు బీఆర్ఎస్ పార్టీ ఇక్కడ భూస్థాపితం అయిపోయిందని నేను అడుగుతున్నా. అంటే ఎమ్మెల్యేకి ఎవరు వింటలేరా? మాజీ ఎమ్మెల్యే కోనప్పకి ఇప్పుడు ఎవరు వింటలేరా నేను అడుగుతున్నా. దయచేసి కార్యకర్తలారు మీరు అందరు గమనించాలి. కష్టపడినా, డబ్బులు పెట్టినా, దానికోసం తిరిగిన తర్వాత నాకు ఇది రిటర్న్ గిఫ్ట్ గా ఇస్తే, రేపు మీరు ఇంత కష్టపడినరు మీకు ఏ రిటర్న్ గిఫ్ట్ ఇస్తాడో ఏమో అనేది నేను మీరు ఆలోచించుకోవాలని మీ అందరికీ తెలియజేస్తున్నాను. अभी आपके पास आपके जो टीआरएस के 2 ग्रुप बन गए आप लोगों के, आप प्रेसिडेंट चेयरमैन हैं, और जो दावा कर रहे हैं कि चेयरमैन के लिए उनके पास 24 काउंसलर्स है बोल के उन्होंने दावा कर रहे हैं, तो फिर आपके पास कितने काउंसलर्स हैं? फिर आपकी मेखत आप कंप्लीट करने वाले हैं क्या? दावा कोई नहीं करे, किसी के पास 24 काउंसलर बोल के दावा नहीं करे, अविश्वासन को सपोर्ट करे 24 लोग, ये उनका जमहूरी हक है। अभी इलेक्शन नहीं हुआ, कलेक्टर साहब अभी नोटिस नहीं दिए, जिस दिन कलेक्टर साहब नोटिस देके डेट देंगे उस दिन दावेदारी ठोकने का रहेगा, जिसके के पास भी रहेगा। और मेरे को भरोसा है मेरे काउंसलरों पर, 4 साल में उनके साथ रहा, कभी जो है सो ऐसा मौका नहीं आया, कभी कोई ऐसी प्रेस मीट नहीं लगाए 4 साल में मेरे काउंसलर्स मेरे खिलाफ। मैं वो काउंसलरों पे मेरे को बहुत एतमाद भी है और भरोसा भी है, मेजॉरिटी ऑफ काउंसलर्स मेरे साथ है। 3 नवंबर को इलेक्शन हुआ, उसके बाद फौरन ये फैसला लेने का क्या वजह थी कि आपके खिलाफ में ये फौरन ये काउंसलर्स ये फैसला लिए? इसमें आपके जो एक्स एमएलए है उनसे आपको नहीं जम रहा, या आप लोगों में इतना इख्तिलाफात क्यों आए? इख्तिलाफात की बात नहीं है, कोनप्पा साहब अपनी हार को बर्दाश्त नहीं कर सके, ये पहला रीजन है। उन्होंने अपनी हार को बर्दाश्त नहीं कर सके। कागज नगर के चाहे जो भी तबका रहो, चाहे वो कौन से भी जात से रहो, चाहे वो मुसलमान रहो, चाहे वो हिंदू रहो, चाहे वो एससी रहो, चाहे वो एसटी रहो, उनको कहीं से भी वोट नहीं मिला, लेकिन अब वो टारगेट जो है सिर्फ एक कम्युनिटी को करना चाह रहे हैं। और आज आप उसका नतीजा ही देख सकते हैं। इलेक्शन में मैं कितना फिरा हूं, आप मीडिया वाले भी कवर किए हैं, आप लोग भी जानते हैं कि मैं कितना मेहनत करा। मेहनत करने के 15 दिन के अंदर ही उन्होंने जो है सो ये डिसीजन ले लिए, और जो है सो दस्तगीर साहब जो है अभी जो पार्टी में आके 3 महीने नहीं हुए, उनको जो है सो सपोर्ट करने का उन्होंने डिसीजन लिए। उनके ऊपर है, उन्होंने हार को बर्दाश्त नहीं कर सके बोल के मैं समझ रहा हूँ। एक्स एमएलए साहब तो दावा कर रहे हैं कि उन्होंने खुद उनके काउंसलरों को समझाए,
ये सरासर गलत इल्जाम लगा रहे चेयरमैन सद्दाम हुसैन बोल के बोल रहे, इस पे आपका क्या बयान है? देखिए, मैं प्रूफ के साथ बात कर रहा हूँ। उन्होंने समझा है और उनको एक भी काउंसलर नहीं सुन रहा बोले तो उन्हें पार्टी छोड़ देना बेहतर है। आज वो डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट है बीआरएस पार्टी के, आज उनके पास एक 4-5 काउंसलर, एक 6 काउंसलर उनके अंडर में नहीं है बोले जैसी बात। मतलब 30 में से 24 लोग सिग्नेचर करे तो 6 तो भी मेरे पास है उनके हिसाब से। मेरे पास तो मैं दावा ठोक रहा हूँ कि मेजॉरिटी मेरे पास, मेजॉरिटी से भी ज्यादा काउंसलर्स मेरे साथ है बोल के मेरे को मालूम है, यकीन है। वो जिस दिन वक्त आएगा उस दिन मैं इंशाल्लाह, आप लोग भी रहेंगे, मैं बताऊंगा। लेकिन एमएलए साहब डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट रहते पर 6-7 काउंसलरों को अगर बोल देते आप सिग्नेचर मत करो तो अविश्वास तीर्मानम होता ही नहीं था। मतलब आप रोक नहीं सके, यही आपकी फेल्यूर है। और आप ये बोलना कि भाई मैं इसमें नहीं हूं, मैं ये हूं, आवाम देख रही है, आवाम को भी मालूम है। अगर आप नहीं रहते तो 6 काउंसलर 5 काउंसलर को सिग्नेचर नहीं कराते थे तो अविश्वास की बात ही नहीं आती। नहीं, वो लोग का कहना ये है कि जब ये काउंसलर्स कलेक्टर ऑफिस को गए तो वो लोग तो कोई गांव में नहीं थे, मतलब सिटी में, टाउन में नहीं थे। जैसा एक्स एमएलए है कोनेरू कोनप्पा साहब या उनकी फैमिली वाले, कोई भी इसमें इन्वॉल्व नहीं है बोल के उन लोगों का कहना है। मुफक्कम भाई, मुंसिफ टीवी हो या बीबीएन हो, एतमाद न्यूज चैनल हो या जितने भी चैनल्स यहाँ पर है, मैं उनको एक ही पूछना चाह रहा हूँ, जरूरी है क्या वो उन्होंने आके दिए तो उन्होंने शामिल है बोल के मालूम है? आप इतने सीनियर है, बीआरएस पार्टी के 24 काउंसलर जा रहे हैं, आप डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट है, मतलब आपके हाथ में कमान नहीं है बोले जैसा, आप छोड़ दो। जरूरी नहीं है कि भाई आप रहे तो इसमें इन्वॉल्वमेंट है, क्यों आप कहीं तो हर जगह जहां पे भी अविश्वास लगा तो वहां पे क्या एमएलए ने तो और कोई डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट जाके दे रहा है काउंसलरों से? ये अविश्वास तीर्मानम काउंसलर जाके देना है, वोट उनका रहता बोले वो लोग जाके दिए। जो राजेंद्र काउंसलर है उनका मीडिया में बयान आया था, उनका कहना है कि चेयरमैन साहब कभी दिन काउंसलर्स को बुलाए नहीं, 4 साल में कभी दिन उनके खैर खैरियत नहीं पूछे, उनको फंड्स नहीं दिए, तो इसके ऊपर आपका क्या है? देखिए राजेंद्र साहब, अब मैं उनके बारे में बोल के उनको बड़ा नहीं बनाना चाह रहा हूं। 4 साल से वो क्या कर रहे थे, फिर आज ही उनको याद आया। एक बार मैं बोलना चाह रहा हूँ, राजेंद्र साहब के एरिया में पैदल दौरा कर लेंगे हम प्रेस वालों को बुला के। राजेंद्र साहब अपने एरिया में लोगों से कितना अवेलेबल रहते, लोगों के लिए क्या क्या काम किए। अगर उन्होंने ये बताना चाह रहे कि भाई मेरे पास काम नहीं हुआ बोलते, वो बीआरएस गवर्नमेंट काम नहीं करी बोले जैसी बात, एमएलए साहब जो माजी थे उन्होंने भी नहीं करे बोले जैसे। सिर्फ एक सद्दाम हुसैन के हाथ में नहीं रहता है, बीआरएस गवर्नमेंट पुराने एमएलए जो कोनेरू कोनप्पा थे उन्होंने भी काम नहीं करे बोले जैसा। अगर राजेंद्र साहब की बात से जो इस तरीके से उन्होंने बोल रहे हैं, उस तरीके से ये लग रहा है कि मेरे को बीआरएस गवर्नमेंट कोनेरू कोनप्पा भी काम नहीं किए उनके एरिया में, इस वजह से उन्होंने ये बात बोले। चेयरमैन साहब, अभी अब बीआरएस पार्टी, जैसा आपके ऊपर बीआरएस पार्टी वाले अविश्वास तीर्मानम लगाए, ये अविश्वास तीर्मानम जब कलेक्टर साहब इशू करेंगे इसके बाद आपकी क्या रहेंगी, आप कौन सी पार्टी में रहेंगे? बीआरएस पार्टी में रहेंगे या फिर कौन सी पार्टी में जाएंगे आप? देखिए फिलहाल तो कोई पार्टी नहीं लगाई है, ये काउंसलरों की तरफ से लगाया जाता है। ये जो हक है ये काउंसलरों का हक है। 4 साल के बाद अगर उनका विश्वास हम लगाना है, कुछ प्रॉब्लम है तो ये लगाते हैं, इसको पार्टी से कंसर्ट नहीं है। लेकिन हर जगह जो है सो जो भी एक्स एमएलए रहता अपने अपने कैडर को सपोर्ट करता। यहाँ पर जो है सो कोनेरू कोनप्पा साहब का फैमिली जो भी है वो जो है सो दस्तगीर साहब को सपोर्ट कर रहे हैं। इसमें कोई गलत बात नहीं है, किसको भी सपोर्ट कर सकते हैं, उनकी जमहूरी हक है। लेकिन मैं जैसा इलेक्शन जीतो या हारो, फिर से जो है सो इनसे वाबस्ता कोई नहीं रहेगा। बीआरएस पार्टी एक अलग पार्टी है, पार्टी से मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन स्पेशली जो कोनेरू फैमिली के लिए मैं इतना काम किए बाद 15 दिन के अंदर जो है सो वो लोग जो है इस तरीके से मेरे को जो बैकस्टैबिंग किए हैं, इस वजह से वापिस अगर जीतता भी हूं या हारता भी हूं, हारने का तो इंशाल्लाह सवाल नहीं उठता। फिर भी अगर काउंसलरों को अगर मंजूर नहीं है, अगर वैसा है तो फिर से मैं वापिस कोनेरू कुटुंबम फैमिली के साथ नहीं जाऊंगा। हालिया में जो असम्बली इंतखाबात हुए एमएलए के, जो सिरपुर तालुके में हुए, आप तो ओपन घूम रहे थे, टीआरएस के लिए काम कर रहे थे, टीआरएस के लिए हर गली गली घूम रहे थे, लेकिन आपके जो टीआरएस कैंडिडेट थे उन लोगों की फैमिली में आपके ऊपर डाउट है कि आपके जो कार्यकर्ता है, मतलब आपके जो करीबी लोग हैं, वो लोग बीएसपी पार्टी को सपोर्ट करें और तकरीबन लोग बीएसपी में घूमे, वो लोग इवन आपके वार्ड से भी बहुत सारे लोग बीएसपी ज्वाइन करे बोल के
ये आप पर वो लोगों का इल्ज़ाम है। देखिए